अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी और मैं अभी भी आपका इंतज़ार कर रही हूँ हियर एट द गेलर्ड नेशनल रिजॉर्ट एट द नेशनल हार्बर, जहाँ पे अपना 37th एनुअल कन्वेंशन हो रहा है। अपना being the Association of Physicians of Pakistani Descent of North America। वैसे you want to hear something funny? मेरे घर की खिड़की जो है ना, उस तरफ वहाँ से मुझे यही रिजॉर्ट नज़र आता है और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि बिल्कुल मेरे बैकयार्ड में इतना बड़ा इंतज़ाम हो सकता है, इतने सारे पाकिस्तानीज़ गैदर हो सकते हैं। Everyone is here right now, which I'm about to continue to show you। 1976 से लेकर आज तक अपना ने बहुत सारा काम किया है तालीमी तरक्की के लिए और मेडिकल एडवांसमेंट्स के लिए। इसी इवेंट पे you will find everything from education to professional development to medical advancements to, of course, social impact and entertainment. So let's not waste any more time. Come follow me. कहने की तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कह देती हूँ कि पाकिस्तान की आर्ट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज दुनिया के टॉप मार्केट्स में शामिल है। हमारे अंदर कितना टैलेंट है ना? मैं तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैंने खुद ही ये अपकमिंग कलेक्शंस को डिज़ाइन किया। But anyway, prepare to be blown away by the breathtaking designs of 3 Pakistani fashion designers, along with Pakistan Sangeet Icon winner or Coke Studio performer Asad Abbas। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अपना एनुअल कन्वेंशन पे बहुत कुछ हो रहा है। अभी इसी वक्त मेरे पीछे हो रहा है एक फैशन शो। Those models back there that just walked off, they're wearing the designs of Sania Muscatia. Let's see what other big designers we'll have. Hold on. From Asad Abbas. Yes. Go check that out. Okay, I don't know if you can hear me right now. I hope you can. I don't know if you can see this right now, but जो मेरे पीछे अभी हो रहा है, it's art. It's so beautiful. ये designer है Gia Designs, and it's absolutely breathtaking. The music here is amazing. Everybody's dancing in their seats. और अभी हमने सुने हैं music from Asad Abbas, who is from Coke Studio. Okay, I gotta go right now. I think I have some shopping to do right now. अच्छा, ये थे the designs of the famous fashion designer Meena Hassan, who by the way is the daughter of the late Noor Jahan. My mind is blown right now. इतने प्यारे कपड़े, I'm gonna faint. By the way, मुझे अपने runway के दिन बहुत याद आ रहे हैं अभी.
These girls are beautiful. They're doing a wonderful job. And the Pakistani community here is having an amazing time. I'm having an amazing time. And look, what you'll notice behind me is that most of these girls, they're not even Pakistani. So they get the opportunity, Pakistani kapde pehnne ke liye, and then they go back and tell everybody कि हमारे कपड़े कितने खूबसूरत हैं. और हैं, of course, so they should say it. All right, back to the show. You're making me miss it. So the mastermind who choreographed this fashion show happens to be my friend, Zarina, such a pretty last name, Abdurrahmanova. Did I say it right? Yes, you did. Okay, so first of all, you're not of Pakistani descent. You are from? मेरा ताल्लुक उज़्बेकिस्तान के इलाके समरकंद से है. See, and this is what I've been telling our viewers. It's amazing that Pakistani fashion is all over the world. So how did you get involved with this fashion show? Well, I happen to have done some modeling myself, and I got in touch through modeling with AA Film Studios. मेरा शोबा डांस और मॉडलिंग है. मैं एक फिल्म स्टूडियो के लिए काम करती हूँ और चूंकि उनके साथ तवील अरसे से काम कर रही हूँ तो इसलिए उन्होंने मुझे इस शो में एक चांस देने का फैसला किया और मेरा ख्याल है कि इसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही. And it seems like it didn't go that bad. I hope it was beautiful, actually. It was really beautiful. And she's wonderful on the ramp. We've walked the ramp together. So now that you're behind the scenes, what's the difference? How does that feel? I understand that the organizers and choreographers have it the worst. मेरा ख्याल है कि ऑर्गेनाइजर्स और कोरियोग्राफर्स ने मेरी परफॉर्मेंस पसंद की है और इस शो के लिए काम करने वाले हर फर्द ने, चाहे उसका ताल्लुक लाइटिंग से था या म्यूजिक से या किसी भी और शोबे से, उसने बहुत मेहनत की है और खास तौर पर मॉडल्स ने भी अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया. मैं AA फिल्म स्टूडियोज और अदनान ख्वाजा और उनकी टीम की खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतने अच्छे और मंजे हुए मॉडल्स के साथ मुझे काम करने का मौका दिया. And his team for giving me this opportunity, and of course Sunny Gill for selecting such awesome models. It was a beautifully done show. What was the experience like for you? I think you were stressed out, nervous? Absolutely. I was very nervous, very stressed out. इस शो में काम करने के दौरान मैं बिलाशुबा बहुत नर्वस और शदीद ज़हनी दबाव में थी, मगर वो चीज़ जिसकी बहुत शिद्दत से तवक्को कर रही थी वो थी नाजरीन की खुशी और उनका इत्मीनान. मुझे तवक्को है कि हर किसी ने मेरी परफॉर्मेंस को पसंद किया होगा और मेरा ख्याल है कि ये एक नए तजुर्बे की जानिब मेरा पहला कदम है और मैं और भी कई नए तजुर्बे करना चाहती हूँ. I like that. It was a great show and I'm sure you'll be doing this again. Thank you very much. I can't wait to show you what's next. एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आएं और मैं आपको दिखाती हूँ. अब मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी सुपरस्टार असद अब्बास जो अभी अभी जीते हैं पाकिस्तान संगीत आइकॉन, द वेरी फर्स्ट वन. अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल. जी वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, तो आपकी परफॉर्मेंस फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही वाज अमेजिंग. तो आप ज़रा ये बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? आप वाशिंगटन DC में क्या कर रहे हैं ऑल द वे पाकिस्तान से? जी मैं स्पेशली बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर एक म्यूज़िक वेव्स कंपनी है न्यू जर्सी से, एडिसन से. उसके ऑनर हैं अजीम अहमद, उनका नाम है. तो मैं उनके साथ टूर पर आया हूँ. सो आपने कोक स्टूडियो में काम किया है, which I mean the best music from Pakistan comes from Coke Studio. तो ज़रा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपकी म्यूज़िकल ट्रेनिंग क्या है, आप म्यूज़िक की तरफ कैसे गए? म्यूज़िकल फैमिली मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक गायक घराने से बिलोंग करता हूँ. मेरी म्यूज़िक फैमिली है. मेरे नाना जी 2 भाई थे, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद इकबाल. वो फोक सिंगर थे. फोक जितना हमारे पाकिस्तान पंजाब में फोक स्टाइल गाया जाता है, इंडिया में भी गाया जाता है, पंजाब में वो सिंगर थे. फिर उनके बेटे 5 बेटे हुए, उनमें से हसन सादिक साहब जो कि मेरे मामू हैं, नज़ाकत अली साहब, शराफत अली, मेरे मामू 3 मामू गाते हैं. तो मैंने सीखा अपने मामू हसन सादिक साहब से, बाकायदा ट्रेनिंग ली और अभी भी सीख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता. उनको देखकर मेरे बड़े भाई गाते हैं, सगे भाई, अली अब्बास उनका नाम है. वो भी इंडिया में एक प्रोग्राम हुआ था जिन्होंने कुछ कर दिखाने का, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया. उनको जूरी अवार्ड मिला लक्स म्यूज़िक अवार्ड में, मतलब बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर का.
उनको अवार्ड दिया गया। और उसके बाद फिर मेरे कज़न आ जाते हैं, अमानत अली, एक कंपटीशन हुआ था सारेगामापा, उसमें उन्होंने गाया था। उन्होंने एक लता जी का गाना गाया था, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं, तो बड़ा फेमस रहा, उनको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। इसी तरह मेरे मतलब और भी कज़न गाते हैं जो अभी तक मतलब नुमाया नहीं हुए, चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और मैंने उनको भी देखा, सबको सुना, परखा, फिर मुझे शौक़ पैदा हुआ गाने का, आगे बढ़ने का। देन मैंने फिर पाकिस्तान संगीत आइकॉन में ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हुआ, फिर स्ट्रगल की, मेहनत की, फिर उसके बाद जीता। उसके बाद फिर मैंने एक मिकाल हसन बैंड है, सूफ़ी रॉक बैंड है, क्लासिकल बैंड पाकिस्तान का, उसमें मैंने एज ए लीड वोकलिस्ट काम किया 2 साल उनके साथ। उनके साथ के एक म्यूज़िक अवार्ड जीता मैंने बेस्ट एल्बम का। और उसके बाद फिर मैंने कोक स्टूडियो में किया, सीज़न 6 कोक स्टूडियो, जो कि पाकिस्तान से एक फेमस प्रोग्राम है कोक स्टूडियो। उसमें मुझे बेस्ट सॉन्ग ईयर का मुझे एक खिताब हासिल हुआ। वो सॉन्ग ऐसा था कि मेरी अम्मी जान का फेवरेट सॉन्ग था, सूफ़ी एक काफ़ी थी, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की काफ़ी है, उनकी काफ़ी है, कदे आवे माही गल लग वे, तेरी दीद गरीबां दा हज वे, कदे आवे माही गल लग वे। उस सूफ़ी सॉन्ग को फिर मैंने, अम्मी ने मुझे बोला कि ये तुम गाओ, उसको मैंने गाया सीज़न 6 में कोक स्टूडियो में, तो उससे मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। अभी रिसेंटली मैंने बॉलीवुड के लिए भी गाया है, म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ काफ़ी काम किया। इंशाल्लाह अनकरीब अपकमिंग मूवीज़ इसी साल में आपको मुझे बॉलीवुड से ज़रूर सुनेंगे। तो आपके अमेरिका में रहना कैसा जा रहा है, मतलब आपको कैसा लग रहा है, पाकिस्तान से कितना मुख्तलिफ है? अमेरिका में मैं ये कहना चाहूँगा स्पेशली मेरे लिए बहुत लकी रहा है जब भी मैं अमेरिका आया हूँ। वैसे आना होता रहता है, मतलब बैंड के साथ भी, मिकाल हसन बैंड के साथ भी आया हूँ टूर पर, 1-2 बार सोलो भी आया हूँ, लेकिन इतना लंबा टूर नहीं मैंने कभी किया था। आता था 10-12 दिन के बाद, 1-2-3 शोज़ करता था, वापस चला जाता था। अभी मैं तकरीबन 1 साल से यहाँ पर हूँ, तो उसमें पाकिस्तान चक्कर लगता रहता है कुछ ही मतलब महीनों के बाद। और यहाँ पर इतने अच्छे, इतने प्यार करने वाले लोग हैं, सीरियसली मैं तो पर्सनली यही सोच रहा हूँ कि मैं इधर ही सेटल हो जाऊँ मतलब कि इतना प्यार करने वाले, म्यूज़िक को अप्रिशिएट करने वाले लोग, जो जबकि पाकिस्तान में हम पाकिस्तानी हैं, तो मुझे खुशी है कि यहाँ पर लोग अपने कल्चर को नहीं भूलते। अभी इंशाल्लाह एल्बम पर काम हो रहा है, ऑलमोस्ट एल्बम कंप्लीट है, कुछ ही गाने बाकी हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस एल्बम को लॉन्च तभी करूँ जैसे मेरे बॉलीवुड से गाने आ जाएँ। इंशाल्लाह फिल्म से गाने आएंगे तो बॉलीवुड के बाद फिर अपनी एल्बम लॉन्च करूँगा, ये प्लानिंग्स हैं। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियोस मार्केट में। अभी पाकिस्तान में एक तो हालात थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं, वो तो अल्लाह बेहतर करे, हमारी दुआ है। कुछ जैसे ही बेहतर होंगे इंशाल्लाह उसके बाद एक गाने का वीडियो मार्केट में फेंकूँगा, फिर चलता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। इससे रिलेटेड मैं एक कहानी शेयर करना चाहूँगी। अभी आपने कहा है कि यहाँ अमेरिका में आकर हमें बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तानियों को देखकर। अभी जब मैं आपसे मिली बाहर, इट वॉज़ वेरी फ़नी क्योंकि ही वॉज़ वेरी सरप्राइज कि मैं उर्दू बोल रही हूँ। उन्होंने सोचा कि मैं गोरी हूँ और आई वॉज़ वेरी हैप्पी क्योंकि आपने कहा कि मेरी अंग्रेज़ी नहीं इतनी अच्छी है। तो मुझे खुशी हुई क्योंकि मुझे फिर उर्दू बोलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मुझे इतना मिलता नहीं है। मेरी उर्दू बहुत ख़राब है लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और आप अपनी अंग्रेज़ी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एनीवे, एक छोटी सी कहानी मैं शेयर करना चाह रही थी। तो आप हमारे लिए स्पेशली लाइव गा सकते हैं? ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, अज़्म मेरा है कहीं मेरे इरादे हैं गयूं। मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, जां फिदा मेरा तख़य्युल है तो शीरीं है सुख़न,
ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। काफ़ी प्रोग्राम्स चल रहे हैं दिन रात, तो गला भी थोड़ा साथ नहीं दे रहा, तो आपको मना नहीं कर पाया। थैंक यू सो मच। सो इसीलिए जो गलतियाँ हुई हैं आपसे भी सॉरी चाहूँगा और देखने सुनने वाला सभी। वाओ, हमें तो कोई गलती सुनाई नहीं दी। दैट वाज अमेजिंग। क्या सुरीली आवाज़, ब्यूटीफुल एंड इवन बेटर इन पर्सन। बहुत आई कैन सी टैलेंट आपकी फैमिली में है। थैंक यू सो मच कि आपने स्पेशली हमारे लिए ये लाइव परफॉर्मेंस दी, हमारे कहानी पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए दी। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आई नो आप ज़रूर थके होंगे, बट आवाज़ से तो नहीं लग रहा, बट थैंक यू सो 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 मच। रिमोट को हाथ मत लगाइएगा। We'll be right back after the break. I'm watching you. डॉक्टर्स, डिज़ाइनर्स, डिबेट्स, ये सब अपना कन्वेंशन पे हैं, लेकिन एस्पायरिंग सिंगर्स, जी हाँ, यहाँ तो लोग अपने फेलो पाकिस्तानीज़ के टैलेंट, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, को नर्चर कर रहे हैं। अमेरिकन आइडल शो का कभी सुना है? चले मैं आपको दिखाती हूँ इस पे एक ट्विस्ट, अपना आइडल। CYP यानी द कमिटी फॉर यंग फिजिशियंस का कहना है कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो अमेरिका आना चाहते हैं अपनी मेडिकल ट्रेनिंग और हुनर को बढ़ाने के लिए, और अमेरिका में पले बड़े हुए जवान डॉक्टर्स पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए उन्होंने ये कमिटी फॉर्म की है उनकी मदद करने के लिए। I welcome you all to join us for today's event. मैं आप सबको आज की तकरीब में खुशामदीद कहता हूँ। मैं सबसे पहले आपको YPC के मुतालिक मुख्तसरन बताऊंगा। इसकी इब्तिदा 2003 में उस वक्त हुई जब अपना से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से डॉक्टरों को J1 वीज़े से इनकार के मसले का सामना करना पड़ा था, जिस पर अपना के कई रज़ाकारों ने इस मसले के हल के लिए अपनी कोशिशें शुरू की। और अब इस सिलसिले में 2004 से एक स्टैंडिंग कमेटी काम कर रही है जो नौजवान डॉक्टरों के वीज़े के मसाइल को देखती है, तरबियती सेमिनार्स का इनेकाद करती है, उन्हें आर्जी रिहाइश और ज़रूरी रहनुमाई फराहम करती है और रेजिडेंसी के हसूल में उनकी मदद करती है। Young Physician Committee also runs a few Apna houses. One is in New York, another one in Michigan. अपना की यंग फिजिशियन कमेटी कई अपना हाउसेस भी चला रही है, जिसमें से एक न्यूयॉर्क और एक मिशिगन में है। इसके अलावा अपना के मुख्तलिफ चैप्टर्स और ताबिक तालिब इल्मों की तंजीमें भी आर्जी रिहाइश फराहम कर रही हैं, जिनमें 2 फिलाडेल्फिया में है और एक शिकागो में है, और ख़वातीन के लिए एक आर्जी रिहाइश का न्यू जर्सी में है जिसका इंतज़ाम मुकामी चैप्टर्स करते हैं। डॉक्टर शहजाद इकबाल न्यूयॉर्क में कायम अपना हाउस का इंतज़ाम बहुत खूबी से चला रहे हैं और डॉक्टर माजिद मिशिगन के अपना हाउस का इंतज़ाम संभाले हुए हैं। This year, number of Pakistani physicians have approached to Young Physician Committee for. इस साल नौजवान पाकिस्तानी डॉक्टरों ने अमेरिका में अपना करियर शुरू करने, इंटर्नशिप हासिल करने और रिसर्च वर्क के सिलसिले में अपना कमेटी से राब्ते किए हैं। इस साल अब तक हम मुख्तलिफ पोजीशंस पर तैनाती के लिए 50 से ज्यादा डॉक्टरों को मदद फराहम कर चुके हैं। हमने 2007 में कोचिंग सेमिनार शुरू किए थे जो अब YPC की रवायत बन चुके हैं। हम रेजिडेंसी के सिलसिले में नौजवान डॉक्टरों की रहनुमाई करते हैं ताकि उनकी अक्सरियत अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कर सके। हमारे कारकुनों की टीम हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार है। We aspire to coach our young incoming physicians in art of successful residency match so that more of you can achieve your dream of residency training. इस साल मार्च में तकरीबन 150 पाकिस्तानी डॉक्टरों ने हमारी कमेटी से रब्ता किया था जिन्हें रेजिडेंसी प्रोग्राम में मैचिंग की सहूलत फराहम की गई। उनमें से कई एक को वीज़ों में तख़ीर की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डाला गया। यंग फिजिशियन कमेटी ने अपना की एक और कमेटी के ताउन से, जिसके सरबराह डॉक्टर रशीद पराचा हैं, अमरीकी महकमा खारजा के साथ काम किया ताकि वीज़ों की जल्द फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। और मेरे पास आपके लिए ये खुशखबरी है कि तमाम पाकिस्तानी डॉक्टरों को रेजिडेंसी प्रोग्राम में जगह मिल गई है, मां सिवाय एक के जिनका वीज़ा 1 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा।
और इस तरह इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने वाला हर पाकिस्तानी डॉक्टर यहाँ आ जाएगा। All the Pakistani physicians have joined residency programs, except one who will be cleared next week. And so every Pakistani physician will be here. Okay guys, it is now the final evening of the 37th annual Apna convention and we are here at the annual Apna banquet. यहाँ पे तकरीबन 5,000 लोग आए हुए हैं. They just served a delicious dinner and the entertainment portion of the evening has begun. Look around you, everybody is here. People from Pakistan, people from all over the United States. And by the way, I just heard that Reema, famous actress, bhi yahan pe hai. I'm gonna go try to find her. Let's go check out the sights and sounds. Assalamu alaikum, this is Reema and you are watching Kahani Pakistani. Keep watching. Will you marry me? I'll think about it seriously. What a whirlwind last few days. My mind is blown. मैं तो एक second भी नहीं सोई. इतनी ज़्यादा excitement. The adrenaline was rushing through my veins. Not to mention, I don't think I can feel my feet anymore. Stupid heels. लड़कियों के नखरे. Anyway, on a serious note, अपना एक बहुत important role play कर रहा है in the lives of Pakistanis दुनिया भर में. ना सिर्फ वो पाकिस्तानीज़ की तालीमी तरक्की और medical advancements के लिए काम कर रहा है, बल्कि वो अमेरिका को ये भी दिखा रहा है कि हम पाकिस्तानी अमेरिकन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, जो जैसे कि आप जानते हैं आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट है. इस इवेंट पे everybody was here. Prominent Pakistanis, prominent Americans, political figures से लेकर social activists और celebrity actors, famous artists और designers तक. I even ran into some family friends who I hadn't seen in a really long time. Now, I can't wait till next year. लेकिन कहानी पाकिस्तानी के ज़रिए मैं आपको और भी amazing लोगों से मिलवाऊंगी और interesting जगहों पे लेके जाऊंगी. So, stay tuned. जाने से पहले, as usual, मैं आपसे request करूंगी, please continue to follow this Facebook fan page. You have all been so great. Thank you so much for the love and support and continue to send me your feedback. हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी और नोखा सफ़र के साथ. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, signing off for कहानी पाकिस्तानी. खुदा हाफिज़.